Just now play short order in LNT at 1583.90. Stop loss is placed at 1585.10. Let's see if it takes more than false. This is a little bit of aggressive breakout trade. Good retracement, about to take my sell order, and I do expect that it will come down just after taking my order. Interesting to watch now. Okay. Sell order has been triggered. Now let's watch the play on 1 minute time frame. At least the reaction has started coming. This is very small, 0.08%, that is 1 rupee 20 paisa. Let's watch how it comes down and break this support first. This is the real beauty of price action, defining right entry and right stop loss. Just pick my entry and it is coming down, about to break this low, about to break this day low and making a new day low. It has potential to go down further. Now place my target order at 1574.25, which is 1:8 risk to reward ratio trade. Absolutely flawless momentum after picking my sell order. No green candle printed. Let's see if it takes my target quickly. Okay, one more red candle. Very near to target. Just last push required by bears. Absolutely fantastic trade. It's time for RBI monetary policy, so anything can happen. On safer side, I have trailed my stop loss at 1578 because due to RBI policy, we can have a large moment suddenly. So let's see if it takes my trailing stop loss or the target. As I trail my stop loss, I have stretched the target a little bit. If it goes down, then we can have a higher risk to reward ratio trade. So I have placed my revised target at 1570.10, which will be around 1:11.5 risk to reward ratio trade. Okay, very good moment. I think the market has become bearish now. Very good, very quick moment. Okay, about to take my target order here. Okay, the target has been achieved. Could I stretch a little bit and got the 1:11.5 risk to reward ratio trade? Very quick trade. This is what is called price action. Without any hurdle, I got my target. And this is not a price action. This is just a luck. This is just a luck. It took my target order and it is reversed back. It would have taken my trailing stop loss. नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। शायद ये आपकी आंखें और दिमाग दोनों को खोलने वाला है। माफी चाहता हूं कि थोड़ा लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन मजेदार भी होगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी। ये मौका दिया है एक सज्जन ने, ये जो वीडियो मैंने डाला है चैनल पे, स्टॉक सिलेक्शन मिस्ट्री और ट्रुथ, इसमें एक पिन कमेंट है। उसमें एक
सज्जन ने ऐसा कहा है इन शॉर्ट कि किसी ट्रेनर को अपना स्ट्रैटेजी या प्रोसेस या लेवल निकालना ये रिवील नहीं करना चाहिए, चाहे वो 60,000 लो या 80,000 फीस ले, रिवील नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं इसके अगेंस्ट हूं, आई हेट दिस थिंग्स। अगर आप किसी के से पैसे लेते हो तो उसको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि अगर आपने और किसी ट्रेनर ने उनका स्ट्रैटेजी अगर बोला या रिवील किया सीक्रेट्स, तो वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद होगा। और कहते हैं कि इट्स वाइज टू कीप सम लेवल्स एंड प्रोसेसेस एज अ सीक्रेट। मतलब लोगों से पैसा भी लो और प्रोसेस भी ना बताओ और सब सीक्रेट रखो, उनको कहते हैं कि वाइज। और ये भी कहते हैं आगे, ओनली अ इडियट विल रिवील एवरीथिंग। मतलब जो मैं कर रहा हूं अभी, जो मैं सीक्रेट और प्रोसेस बता रहा हूं, ये कोई इडियट करता है। मैं ये भाई साहब से दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो आप किसी सेल्फ डिक्लेयर ट्रेडिंग गुरु के चेले हो, इसलिए उसको डिफेंड कर रहे हो। दूसरी बात, अगर इस दलदल से मैं एक भी आदमी को, एक भी ट्रेडर को बाहर निकाल सकूं, तो ये इडियट होना मुझे मंजूर है और मैं ये करता रहूंगा। उनका और भी कहना है कि अगर आपने सीक्रेट रिवील किया तो आपका खुद का ट्रेडिंग करियर और अपने स्टूडेंट्स का करियर दोनों का इन शॉर्ट वाट लगेगा। तो भाई साहब, मेरे ट्रेडिंग करियर के बारे में आप मत सोचो। मेरा ट्रेडिंग करियर और मेरे स्टूडेंट का प्रॉफिट मैं देख लूंगा, मैं वो देखने के लिए कैपेबल हूं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप खुद का देखिए। तो ये था बैकग्राउंड। अब ये तो मुझे परेशानी दिख रहे हैं हिंदी ट्रस्ट वाले, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको गेट वेल सुन मैसेज जरूर लिखना। और मैं इन लोगों को ऐसा छोड़ नहीं सकता। मतलब ये क्वेश्चन किया है मेरे ऊपर, या तो एक प्रोसेस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर मैंने रिवील किया कोई स्ट्रेटेजी तो काम करना बंद करेगी नहीं करेगी। तो इसका आंसर मुझे टेक्निकली देना बहुत जरूरी है, इसलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं और ये प्रूव करके दिखाऊंगा। ये स्ट्रेटेजी कुछ नहीं रहता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी एंड योर थिंकिंग। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का एलएनटी का ट्रेड। ऐसा कहा जाता है कि अनेकता में एकता, भारत के बारे में कहा जाता है, वैसा ट्रेडिंग में भी है। तो आज मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिर्फ स्ट्रेटेजी मैटर नहीं करता, लेवल्स मैटर नहीं करता, या कोई प्रोसेस भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका साइकोलॉजी, आपका थिंकिंग और आपका जो इंस्टेंटेनियस डिसीजन है वो। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आज का ट्रेड एलएनटी का। ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट इट इज मेकिंग लोअर हाई लो लो स्ट्रक्चर। हम अभी रेगुलर प्रोसेस थ्रू जाएंगे कि करना क्या होता है। ये तो मेजर लो था जो बहुत दिन प्राइस यहाँ पे खेलने के बाद यस्टरडे फाइनली इट गिवन वन ब्रेकडाउन कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। सो नेक्स्ट डे हाइपोथेसिस सेल साइड था, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ था विथ डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज। या तो इस कैंडल के कोई इंपॉर्टेंट लेवल से या ब्रेकआउट मेथड से। मतलब ये कैंडल का जो लो है, जो सपोर्ट माना जाता है कि प्रीवियस कैंडल का लो एक नेचुरल सपोर्ट रहता है, उसके अगर नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो यू कैन टेक अ ब्रेकडाउन ट्रेड या ब्रेकआउट ट्रेड। तो देखते हैं ये ट्रेड कैसा हुआ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एलएनटी ओपन ऊपर हुआ, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुआ, और ये जो प्रीवियस डे लो था इसका ब्रेकडाउन हुआ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। मतलब बेयर्स हैव शोन द स्ट्रेंथ बाय ब्रेकिंग दिस प्रीवियस डे लो, एज वेल एज फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेकडाउन हो चुका था। ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड ज्यादातर 1 मिनट में लिए जाते हैं, क्योंकि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि रनिंग मार्केट में या रनिंग प्राइस बिहेवियर में लिया जाता है। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब ये ट्रेंडिंग जोन फॉर्म हुआ था। तो ये ट्रेंडिंग जोन का जो ये कैंडल है उसका जो क्लोज है वो था 83.80। तो इसके ऊपर जस्ट
10 पैसा मैंने एंट्री लगाया था 83.90 पे, और स्टॉप लॉस रखा था ये ट्रेंडिंग कैंडल जो था, फर्स्ट ट्रेंडिंग कैंडल, वो था 85 पे इसका लो। तो 85.1, जस्ट 10 पैसा अबव दैट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। टारगेट तो आपने देखा ही रहेगा मैंने कैसे चेंज किया, और ये शेयर लक था कि मेरा टारगेट लेके ही ये रिवर्स हो गया। तो ये था 1:11.5 ट्रेड। अब ये हुआ एक मेथड जिसे कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड। अब इसमें हमने क्या क्या देखा, डेली चार्ट एनालिसिस किया, कुछ लेवल ब्रेक हुआ है क्या वो डिले वॉल्यूम ये देखा, और यस्टरडे लो के नीचे ब्रेकआउट ट्रेड लिया। तो एक प्रोसेस होगा। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है ये वो ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हो, मतलब आपको इतना 1 मिनट में खेलना आता नहीं है या करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये भी कर सकते हो। अगर ये लो है प्रीवियस डे का और प्राइस सुबह नीचे आया और फिर ब्रेक इनसाइड किया, मतलब ये लो का रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब बुल्स आर एंटर्ड इन मार्केट। अगर बुल्स एंटर्ड है तो आप बाय ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन से मेथड से लोगे, अगर प्राइस ऊपर है तो ये देखा, टू रेड टू ग्रीन, मतलब आर जी स्क्वायर, ये है सपोर्ट कंफर्मेशन। अब सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपके पास दो सपोर्ट कंफर्म है। एक तो ये रेजिस्टेंस का बना सपोर्ट जो यहाँ पे खड़ा है, दूसरा ये एक सपोर्ट है, और ये ब्रेक इंसर्ट हो चुका है। अगर बेरिश रहता तो नीचे चला जाता। तो ऐसा प्राइस एक्शन रीडिंग करके आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। प्रोसेस सेम है, थिंकिंग सेम है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर साइकोलॉजी आपका ट्रेड अलग है। कोई एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड करेगा, कोई ये बाय ट्रेड भी करेगा ब्रेक इंसर्ट, ये भी 1:4 दिया रहता। ये होगा दूसरा टाइप। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का ट्रेडर हूं, मतलब मेरा हाइपोथेसिस सेल साइड ही है, मुझे सेल ही ट्रेड करना है, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है जो रिस्की है, मैं यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा, ये ब्रेक इंसर्ट बाय भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हाइपोथेसिस सेल है। तो मैं सेल कहां से करूंगा, अपना ही मेथड है। अगर मैं ये जिगजैग डालने का कोशिश करूं तो ये तो स्ट्रेट फॉल हुए कल, और एक ही हाई था जिसे मैं शॉर्ट कर सकता था, लेकिन ये दोनों टाइम ये टेस्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकता एग्रेसिव, यहाँ भी मैं शॉर्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली क्योंकि ये तो ब्रेकआउट कर दिया। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस सस्टेन है और मुझे शॉर्ट करना है, तो मैं और क्या ढूंढूंगा, कोई और जिगजैग मिलता है क्या 1 मिनट पे, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है। तो अगर ऐसे आंखों से भी देखा जाए तो प्राइस यहाँ गया ऊपर गया, यहाँ आया ऊपर गया, ऐसा हुआ जिगजैग। तो अगर मैं मार्क करूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, शायद आपको दिखा रहेगा, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखते हैं इसके ऊपर रिएक्शन कैसे आया। अब जाते हैं 5 मिनट पे। अब ये देख रहे हो, ये क्या है, टू ग्रीन टू रेड, मतलब जी आर स्क्वेयर, हो गया रेजिस्टेंस कंफर्म। वो भी प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस पे ही है। क्या हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं, या तो इस कैंडल के लो से करो, इस कैंडल के हाई पे करो, एंट्री इस कैंडल में ट्रिगर हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, आपका टारगेट जितना रखो 1:8 भी मिल जाएगा। तो ये है थर्ड टाइप वाला ट्रेडर का ट्रेड। प्रोसेस सेम ही है, जो मैंने 13 प्रोसेस मोटा मोटी बताया है उसमें ही सब है, लेकिन आपके साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग के नजरिए से देखा जाए तो
कौन सा भी स्टॉक किसी लेवल से कैसे ट्रेड करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां कहां से सवाल आ गया है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। और भी अगर मजा मैं बताऊं कि सर थोड़ा और तड़का मारिए इसको, तो मैं और तड़का मारूंगा। अब एक मैंने प्रोसेस बोला था कि लास्ट मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम कैंडल रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ढूंढने की कि मई महीने का सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा है। तो चार्ट से दिख रहा है कि 13 मई को सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था और उसके बाद था 23 मई को। अभी ये वॉल्यूम थोड़ा 19-20 है, तो हमको डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा कि सच में कौन से डे में डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा था। तो ये एल का डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा है जो मई मंथ में हम चेक करेंगे। मई मंथ में देखिए 2235 13 मई को था और 23 मई को था 2493। मतलब 23 मई को हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया था मई मंथ का। 31 मई को 83 है, मतलब 10,000 इससे कम ही है, मतलब टेक्निकली यही है 23 मई। तो इंपॉर्टेंट कैंडल बन गया। अब इंपॉर्टेंट कैंडल का अगर मैं लो और हाई मार्क कर दूं, तो मैंने ये भी बोला है एक प्रोसेस में कि अगर उसके ऊपर ट्रेड करते हैं प्राइस तो बाय कर सकते हो, इसके रेजिस्टेंस के लिए तो सेल कर सकते हो, यहां से बाय कर सकते हो, या तो प्राइस ब्रेकडाउन हो तो यहां से भी सेल कर सकते हो। ये बोला है मैंने पहले। आज क्या हुआ, कल ब्रेकडाउन हुआ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। आज लेवल क्या है देखो 5.60। अगर 5 मिनट में जाए, क्या ये सेम लेवल नहीं आ रहा सेलिंग के लिए? सेम प्रोसेस है, GR² है, सेम ट्रेड है। तो नजरिया कौन सा भी रखो, आप ट्रेड तो कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप यही ट्रेड करो, यही ट्रेड करो या यही ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। तो ये है मैजिक ऑफ प्राइस एक्शन। ये था थोड़ा ट्रेलर। या आप सोचो किसी भी तरीके से ट्रेड तो आप कर ही सकते हो अगर आपकी सोच एकदम क्लियर है कि क्या करना है मुझे। तो ये था थोड़ा ट्रेलर जो मैं दिखाना चाहता था प्राइस एक्शन का। होप सो आपको समझ में आया रहेगा मेरा इंटेंशन। और चिंता मत करो, मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। 2-2 ढाई-ढाई साल किसी प्रोसेस के पीछे लगना और ना समझना, उसका दर्द मुझे पता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। धन्यवाद।